topic sample size determination is basically not very much taught in universities. Okay, also not in any UG or PG course. Even in the research methodology course, this topic is not very much touched upon. I was also associated with the University of BHU and then Lucknow University, Central State of Rajasthan. So when I went to the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, over there, the first question which was asked by the applied user, what is the sample size? So I thought, what the sample size is. So initially, I used to solve their problem by hit and trial method. But slowly and gradually, I realized that there are some fundamental concepts behind sample size determination. And as a researcher, all of us should know these fundamental concepts. So my objective uh, is two things. One, to tell you the fundamental of sample size determination, and second objective that how you can calculate sample size as per your research question. It is a very broad topic, but I hope you people will enjoy this talk. Whatever I am trying to summarize uh, in these slides. So, so I am Dr. Anoop, and currently I am working uh, in Department of Biostatistics and Health Informatics. So these are some slides. So what uh, go just like now, what is the motivation behind sample size calculation? So if I'll ask you that how much time it will take you people to reach from Lucknow University to our railway station. Just a minute, let me point out. Let me point out. हाँ, आप बताइए प्लीज, यहाँ से अगर मैं पूछूं कि रेलवे स्टेशन जाने कितना टाइम लगेगा? हाँ? किससे जाएंगे? कैब से जाएंगे? कार से जाएंगे? नहीं नहीं, अगर कार से जाना है तो बताइए। आप गए गए कि नहीं गए? यहाँ से लखनऊ की है ना? हाउ मच टाइम इट विल टेक? 40 minutes? This is a question. This is a question, and here it will become a research question. How much time it will take? Because if somebody is new to the Lucknow, he have came here for the counseling. पूछेगा यहाँ से स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा? What answer you will give? तो सबसे पहले तो आप उनसे खुद ही कई क्वेश्चन पूछने शुरू करोगे, कैसे जा रहे हो, ट्रेन कार से जाओगे, मेट्रो से जाओ ज्यादा अच्छा है, उससे आप कितने समय में पहुंच जाओगे? नो द क्वेश्चन इज दैट वॉट एवर यू आर गोइंग टू मेजर इन टू योर रिसर्च क्वेश्चन, ये आपने कैसे बता दिया? हाउ यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन? ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, और इन शॉर्ट फॉर्म आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खुद का डेटा तो है। बिना डेटा के, विदाउट डेटा यू आर नॉट एबल टू आंसर। कोई नया है तो वो कहेगा कि भाई यहाँ से हमको अयोध्या जाना है, कितना टाइम लगेगा? ठीक है। और अगर आप लोगों से और एक सिंपल क्वेश्चन पूछे, ठीक है, हमें पीजीआई में रेडियोलॉजी में जांच करानी है, कितना समय लगेगा?
No, the question is the answer to this question है इसका तो मेरे पास डेटा नहीं, मैं कैसे बताऊं? If you ask me, मैं पूछूंगा कौन सी जांच है. I have got some experience, some data in my mind, so I will be able to answer this particular research question. So this particular question, not a research question. So the thing is that whenever whenever you have to make a decision or whenever you have to answer a research question, data is required, and this particular workshop is on this data analysis. Okay, and to collect 100% data is impractical. सुन चुके होंगे ये कहानी आप लोग पहले. Question is that how much data is required. कितने कितना डेटा हमारे पास होना चाहिए इस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. ये अपने आप में ये क्वेश्चन, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे करना. आई वांट टू डू अ स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, या किसी वर्कशॉप का एक सर्वे करना है, सेटिस्फेक्शन सर्वे, कि कितना आप लोगों को फायदा हुआ. कुछ 20 क्वेश्चन रह गए और क्वेश्चन इज दैट कि कितने लोगों से पूछे. 10 लोगों से पूछ लें, 20 लोगों से पूछ लें, या सभी लोगों से पूछ लें. ओके, यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है तो किससे पूछे? उस आदमी से पूछे जो कि 2 4 5 बार गया, या वो आदमी जो कि थोड़ा जिसके बाल सफेद हो गए, जो बहुत पुराना आदमी है लखनऊ का, उससे पूछे. तो हाउ मच डेटा इज रिक्वायर्ड, this ultimately becomes a very pertinent question whenever a particular researcher came to us, either is a social science scientist or biological scientist or medical scientist, and whatever field, if it's coming to a statistician, we we look for these 4 things. What is the study design? What is the sample size? What statistical measure he is going to use, and what inference he is going to draw. So every research article, every research project is comprised of these 4 parts, these 4 things. And if you are very clearly mentioning these 4 points into your proposal, research proposal, into your synopsis, it is a good synopsis or a good proposal. Otherwise, it is a incomplete synopsis of the proposal. आपको लिखना पड़ेगा स्टडी डिजाइन का मतलब क्या हुआ. स्टडी डिजाइन का मतलब सिंपली ये हुआ कि भैया आप डेटा कैसे कलेक्ट करने जा रहे हो. स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे करना है आपको यूनिवर्सिटी में, और यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा. इट इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इट विल बी अ कोहॉर्ट स्टडी, इट विल बी अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, इट विल बी अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी. आप किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, दैट एक्चुअली कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट स्टडी डिजाइन. एंड यू शुड मेंशन कि मेरा स्टडी डिजाइन ये है, हम इस तरह से डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं. ये आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा. नहीं साफ साफ लिखेंगे तो आपको खुद ही नहीं पता कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करें. So at the start of the study, you have to mention that this is my study design. Second very important question is that what will be the sample size? कितना डेटा कलेक्ट करेंगे? 100 करेंगे, 200 करेंगे, 500 करेंगे, 1000 करेंगे, 250 करेंगे, 173 करेंगे. हाउ मच डेटा यू आर गोइंग टू कलेक्ट? So what will be the sample size? Third point that you should write down into your synopsis, और वो आपके रिसर्च आर्टिकल में भी आएगा, that to answer the research question, ठीक है, testing a research question is comprised of various stages. To answer a research question, what statistical measure you are going to use, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SAP. What is your statistical analysis plan? नॉर्मली होता क्या है, to be very frank with all of you, सर ये मेरा डेटा है, इसमें जरा ये टेस्ट कुछ पी वैल्यू निकाल के बता दीजिए. यही होता है हमारे कंट्री में, ठीक है, जो कि एक गलत ट्रेंड है, विच इज अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड. whomsoever is a good researcher, जो भी अच्छा रिसर्चर होगा, कोई जरूरी नहीं कोई फैकल्टी हुई, मे बी स्टूडेंट,
एट द स्टार्ट ऑफ दिस स्टडी इटसेल्फ, अपनी स्टडी शुरू करने से पहले ही वी शुड डू द लिटरेचर रिव्यू थॉरोली। रिसर्च क्वेश्चन बनाना ही अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। उसके लिए भी हम आपको मूल मंत्र बता देते हैं, वही रिसर्च क्वेश्चन लीजिए है जिसको जिसका आंसर लोग जानना चाहते हैं आपके फील्ड में। यू टेक दैट रिसर्च क्वेश्चन जिसका आंसर जानने के लोग आतुर हैं। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू डू द PhD thesis, on what topic you should do the PhD thesis? टॉपिक शुड बी समथिंग लाइक दिस कि आपको पता ना कि मेरे फील्ड के लोग इस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए बेकरार है, बेचैन है। देन यू विल सी दैट दिस इज अ गुड रिसर्च क्वेश्चन एंड देन यू डू द लिटरेचर रिव्यू। सो दिस सैंपल साइज, व्हाट स्टैटिस्टिकल मेजर यू आर गोइंग टू यूज, ये आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए अपने सिनॉप्सिस में, जो कि आपको इस वर्कशॉप में बताया गया। एंड देन व्हाट आर द पॉसिबल इन्फ्रेंस यू आर गोइंग टू ड्रॉ। सुबह पढ़ा होगा आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में क्या inference, how to draw the inference. Now, to validate a research question, one has to plan and execute a study for coming to a valid conclusion. It is a scientific study, so you should have a well-organized planning that how you are going to execute your study. ऐसे नहीं कि मतलब कभी कुछ कर दिया, चलो उधर से ले लिए 200, इधर से 50 ले लेते हैं। Should not be like that. And then to estimate your research question, जो कि यहाँ पे लिखा some characteristic of the study population, अपने रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू नीड द डेटा और द सैंपल। हाउ मेनी सैंपल इज रिक्वायर्ड, दिस टॉप विल गिव यू द आंसर फॉर दैट। So that's why whenever you are writing a proposal or synopsis, they will ask you what is your sample size. That's why this sample size plays an important role for assuring the validity, accuracy, reliability and integrity of your study. कम से कम इतना तो डेटा, बिकॉज मैंने बोला ना यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, कितना डेटा आपके पास होना चाहिए कि उस पर जब आप 40 मिनट या 25 मिनट बोल रहे हैं वो क्या हो, रिलायबल हो। ठीक है, दैट एस्टिमेट शुड बी रिलायबल। आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपने बस 2 या 3 बार ही आप यहाँ से गए और उसी के ऊपर उसी के बेसिस पे अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मुझसे कोई पूछेगा यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन कब जाओगे, सुबह जाओगे, शाम को जाओगे, किस टाइम पे जाना है, पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अच्छा फिर किस चीज से जा रहे हो, ट्रेन यहीं से बन के चलती है कहीं से आ रही देख लो। बट there is something, if I have got lot of observation in my mind, then only whatever I am going to tell him, that will become a very good answer. What we have observed, and that is also we have published in IGMR, that the study design, the statistical analysis or the test which is used in that study design and sample size calculation, है ना, we observe that they are not integrated with each other. वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं है। what is the meaning of integration? कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन कुछ और है, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जब सैंपल साइज कैलकुलेट करने की बारी आई तो हमने यूज किया टेस्ट फॉर प्रपोर्शन, बिकॉज दिस इज ऑब्जर्व। कम से कम 300 रिसर्च आर्टिकल in the field of medicine we have reviewed, and we have found that 80% of the research articles have brought these errors. That is well established and also published in IGMR. Now, this coming to the main part, sample size determination.
Okay, this actually have two parts. One part is estimation and another part is hypothesis testing or testing of hypothesis. What is your research question? आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है? From there, you people have to decide whether my research question is about estimating something or whether my research question is about testing a hypothesis. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहां से रेलवे स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज माई रिसर्च क्वेश्चन. So here, statistically, I'm in the process of estimating a time to travel from Lucknow University to railway station. मुझे बस ये estimate करना है. तो this is a problem of estimation. इस केस में सैंपल साइज डिटर्मिनेशन क्या होगा? अलग होगा, फॉर्मूला उसका डिफरेंट होगा. बट इफ द सेम क्वेश्चन हम इस तरह से बोले कि मेट्रो से जाने में कम टाइम लगता है, कैब से जाने में ज्यादा टाइम लगता है, दिस इज अ स्टेटमेंट. दिस इज अ स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट है. नाउ आई वांट टू टेस्ट दिस स्टेटमेंट. ठीक है? तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस. इतना आप लोग जान जाइए कि अगर आप लोग अपने रिसर्च क्वेश्चन में ये चीज डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि आपका रिसर्च क्वेश्चन एस्टिमेशन की प्रॉब्लम है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम है, तो आप किसी स्टैटिशियन से आप डिस्कस करें. बिकॉज ये एक बहुत ही फंडामेंटल चीज. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आगे की आपकी सारी एनालिसिस, वो सारा सब क्या होता चला जाएगा? गड़बड़ होता चला जाएगा. तो हाँ, प्रिसीजन टर्म अभी आएगा. प्रिसीजन एनालिसिस इन इन एस्टिमेशन. एस्टिमेशन में जो पावर एनालिसिस जो टेस्ट, उसको हम लोग कहते हैं इट इज अ प्रिसीजन एनालिसिस. और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जब हम जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पावर एनालिसिस. अब इसको प्रिसीजन एनालिसिस या पावर एनालिसिस क्यों कहते हैं? आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस टॉक इसका आंसर आप लोगों को खुद ही मिलता है. तो जब भी आप सैंपल साइज कैलकुलेशन की बात करेंगे, देन यू रिक्वायर सम सर्टेन इनपुट पैरामीटर्स. तो सबसे पहले हम लोग एस्टिमेशन की बात करते हैं और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. ओके, सो आई होप दिस particular figure which people are observing here, that consider that this is the population. Now, what is the meaning of population? Here I define all the employees of Lucknow University. लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो मेरा पॉपुलेशन, दैट इज माय स्टडी पॉपुलेशन. ठीक है? क्लियर? सो व्हाट इज द बेस लाइन? पॉपुलेशन शुड बी वेल डिफाइंड. मैं इस पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं हूं. आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है. इफ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, then only you are become a part of this particular population. The population should be well defined. It means आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये बंदा पॉपुलेशन का, ये बंदा पॉपुलेशन का नहीं. दैट्स इट. ठीक. नाउ अब इस पॉपुलेशन में वी वांट टू एस्टिमेट क्या हम एस्टिमेट करना चाहते हैं? बॉडी मास इंडेक्स. कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय का जो बॉडी मास इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स सब लोग जानते हैं. ठीक है? ये एक पैरामीटर है किसी के फिजिकल फिटनेस को मेजर करने का, WHO में दिया हुआ है. ठीक है?
So for that we need the height and the weight of the employees, और उसके बेसिस पे हमको बॉडी मास इंडेक्स पता चल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि उसके लिए आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय का हाइट और वेट आपको नापना पड़ेगा. चाहिए केवल इसी डिपार्टमेंट के जितने एम्प्लॉय हैं सबका हाइट और वेट नाप के दिखाइए. इसी डिपार्टमेंट का, अभी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गो एंड मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. कोई छुट्टी पर है, कोई सेंट्रल ऑफिस गया है, कोई उस डिपार्टमेंट में है, कोई वहां पे क्लास ले रहा है. तो जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज करने जाते हैं तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. पूरे पॉपुलेशन का जब आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपका 5 साल बीत जाएगा पीएचडी का, आप वो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. एग्रीड? ठीक. दैट्स व्हाई व्हाट इज बीइंग थॉट ऑफ, आप लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है. जस्ट टेक अ रैंडम सैंपल. आप एक रैंडम सैंपल लीजिए और उस रैंडम सैंपल की मदद से आप एस्टिमेट करिए कि बीएमआई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. हाउ बीएमआई डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने परसेंट लोग लो बीएमआई में, कितने परसेंट लोग हाई बीएमआई में, और कितने परसेंट कितने लोग. यू हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीएमआई. क्वेश्चन फिर से वही. ठीक है, आपने बताया तो रैंडम सैंपल लेने के लिए कितना लें? 100 लोगों को ले लें, 50 लोगों को ले लें, 500 लोगों को ले लें, कितने लोगों को? दिस दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम. आपको क्या करना है? यू वांट टू एस्टिमेट मीन बीएमआई ऑफ एम्प्लॉय ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी. चलो, प्रॉब्लम समझ में आ गई? ठीक है. अब इसको थोड़ा और मजेदार करते हैं इस प्रॉब्लम. मान लीजिए हमने सैंपल साइज 100 फिक्स कर दिया. ठीक है. और 100 एम्प्लॉयज का बीएमआई हमने कैलकुलेट कर लिया, हाइट और वेट मिल गया, और उससे हमें मीन बीएमआई मिल गया. ठीक है. वो है मान लीजिए 24. मीन बीएमआई मेरा आया 24. यही काम अगर ये करें, सेम काम, इनको भी क्या करना है? 100 लोगों का रैंडम डेटा लेना है, मीन, अरे आपको हाइट और वेट निकाल करके इनका मीन बीएमआई कितना है? 24 आएगा. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ज्यादा भी हो सकता है 24 से कम भी हो सकता है. ठीक है. या इसको और दूसरी तरह से बोले, आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप सब लोगों का मुझे क्या निकालना है? एवरेज हाइट निकालना है. तो हमने 10 लोगों को रेंडमली सेलेक्ट किया. तो रैंडम सिलेक्शन अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, उस पर ज्यादा नहीं बात करेंगे. 10 लोगों को रेंडमली सेलेक्ट किया, उनका हाइट लिया, मीन हाइट आ गया 150 सेंटीमीटर. ठीक है. सेम काम आप लोगों में से फिर से किसी ने किया, 10 लोगों को रेंडमली सेलेक्ट करिए, मीन हाइट निकालिए, क्या है? डिफरेंट आएगा. ठीक है. So the issue is that as soon as you take a sample and try to estimate about the population characteristics, it has got an error. उसमें क्या हो जाता है? गलती हो जाती है. भाई या तो आप सभी का ले लीजिए और वहां से मीन निकालिए, दैट मीन विल बी द ट्रू मीन. वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कैंसिल नहीं हो पा रहा है. तो हमने जैसे ही हमने एक सैंपल लिया, सैंपल लेने के साथ जैसे ही हम एस्टिमेट करते हैं, व्हाट हैपन, उसमें एक एरर आता है. आप कहोगे मेरे हिसाब से तो यहाँ से जो हाइट है 150 आ रहा है. नहीं नहीं नहीं, मेरे में तो 155 आ रहा है. आपका एस्टिमेट गड़बड़. what should be the what we should know? So ultimately at this particular point of time, all of us should estimate. As soon as we estimate anything from the sample, उसमें कुछ गलती होती है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? इस चीज से एग्री करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया? नेक्स्ट स्टेप है कि उस गलती को हम लोग क्या करें? अब नाप लें. ठीक है.
और उसके साथ में नापने से क्या फायदा हो जाएगा कि देखिए आपने बताया, देखिए मेरा एस्टिमेट ये है, दिस इज माय एस्टिमेट, और उसमें इतनी गलती हो सकती है। ठीक है, तो जो रीडर होता है, द रीडर ऑफ योर रिसर्च आर्टिकल और योर एस्टिमेट इज एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां से कहां तक वैल्यू जो है वो वेरी कर सकते, उसको इससे ये आइडिया लगता। ओके, सो अंडर सर्टेन एजम्पशंस, अंडर सर्टेन एजम्पशन अगर आप मीन को एस्टिमेट करते हैं, तो वो मीन का जो आपने 50 लोगों 100 लोगों का सैंपल लिया, आपने एक्स बार एस्टिमेट किया, इस जॉब को रिपीट करके, जस्ट रिपीट दिस जॉब, और आप एक्स बार निकाल लीजिए। कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर दैट एरर, मैं उसकी बात करूँ, उस गलती को नापेंगे कैसे। तो आपने एक बार मीन निकाल लिया, 2 बार मीन निकाल लिया, फिर से नया सैंपल लेकर के आप इस काम को कई बार करते चले जाइए। ठीक है, फिर आप क्या करिए, इन सारे मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल। स्टैंडर्ड डेविएशन सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो स्टैंडर्ड डेविएशन, बताइए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। कोई बात नहीं, जो जो आपको पता है बताइए। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 50% लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो नहीं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। बताइए आप। नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, ये तो उसका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। तो व्हाट एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन करता क्या है, वो डेटा में डिस्पर्सन को, डेटा में फैलाव कितना है उसको नापता है। कैसे नापता है, इट इज अ एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। जो मीन है, मीन हो गया, मीन से सारे ऑब्जर्वेशन की दूरी होगी कुछ ना कुछ। उसी तरह से इस एक्स बार में क्या होगा, इस एक्स बार में क्या होगा, सारे एक्स बार अलग अलग होंगे, इनमें एवरेज कितनी दूरी है वो अगर हम निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज हम कितनी गलती कर सकते हैं। तो जब उसको डिराइव किया गया तो ये देखा गया कि ये जो एक्स बार है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला सिग्मा बाई अंडर रूट एन। थ्योरेटिकली इस चीज को फिर प्रूव किया गया अंडर सर्टेन एजम्पशन, नॉट अ हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स क्लास। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ये सिग्मा बाय अंडर रूट एन इज द एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, कि जब कभी भी आप, whenever you are estimating the mean, you should write down the mean and then tell him what is the value of sigma by under root n. This is also termed as standard error. आपके एस्टिमेट का स्टैंडर्ड एरर कितना है। ओके, और इसी के बेसिस पे, फिर इसी स्टैंडर्ड एरर के बेसिस पे ना फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकाला जाता है। यू आर एस्टिमेटिंग, आप कुछ एस्टिमेट करते हैं एंड देन यू गिव इट्स 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। व्हाट डज इट मीन, कि अगर हमने बता दिया कि मीन बीएमआई जो है वो 24 है, और उसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो कह दीजिए 2 है, इट इज 2। ठीक है, मीन बीएमआई 24 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 2 आ रहा है, सिग्मा बाई अंडर रूट एन की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 2 आ रही है। तो जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो निकल के आता है वो आता है एक्स बार प्लस माइनस 1.96 या अप्रोक्सीमेटली आप उसमें 2 कर दें, 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर, यानी प्लस माइनस 4 कर दीजिए। तो 24 -4 एंड 24 +4, यानी कि 95% ऑफ द मीन इज गोइंग टू लाई इन दिस इंटरवल 20 टू 28। एज सुन एज आप सैंपल लीजिए, 100 सैंपल लेंगे तो 100 सैंपल में जो 95 सैंपल है उनका जो मीन की जो वैल्यू आएगी वो 20 से 28 के बीच में आएगी। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो निकलता किससे भैया, उस स्टैंडर्ड एरर से। अभी सो थोड़ा सा
थोड़ा सा अब हम नोटेशंस पे जाते हैं। ये लिखा हुआ है कि जो आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, बीएमआई, ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट की प्रोबेबिलिटी 1 - अल्फा है। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए ये हुआ कि अस्पताल में अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी मैटरनिटी, कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहां पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं उन बच्चों का वेट कितना है। व्हाट इज द मीन वेट ऑफ दोज चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन वेट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 3.1 टू 3.7, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? 95, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि भैया बच्चे का वजन कितना होगा, तो कहते देखिए अगर आपने 37 वीक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आपके जो बच्चे का वजन है वो 3.1 से 3.7 के बीच में आएगा, और इसकी संभावना कितनी है? 95। ओके, तो ये इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं, जस्ट जस्ट वी ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। क्या ब्रेक डाउन किया? ब्रेक डाउन ये है कि दिस एलसीएल और यूसीएल, मतलब ये जो एस्टिमेट किया म्यू, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर माइनस करेंगे तो हमको एलसीएल मिलेगा, और प्लस कर देंगे तो हमको अपर कंट्रोल लिमिट मिल जाएगा। और उसका जो फॉर्मूला है वो है जेड अल्फा बाई टू सिग्मा बाई अंडर रूट एन, वॉट एवर वी आर गोइंग टू एस्टिमेट, जस्ट ये जेड अल्फा बाई टू करते हैं, सिग्मा बाई अंडर रूट एन, तो आपको पता चल रहा होगा क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड एरर। ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड एरर है। और ये जो जेड अल्फा बाई टू है, ये ये क्या है? तो ये जो अल्फा है ये हमारा हो जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आपका जो एक्स बार है, जब आप कई बार उसको निकालेंगे तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह चलेगा। ओके, और इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में व्हाट व्हाट वी हैव टू डू कि हमको निकालना है ये। तो यहाँ वाली जो वैल्यू ये निकल के जो आती है, ये वैल्यू, इसी को हम कह देते हैं ये जेड अल्फा बाई टू। अगर ये टू साइडेड है, 5% अगर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो यही जो वैल्यू है ना, ये जेड अल्फा बाई टू निकल के आती है यहाँ पे हमारा मीन हो गया, दिस इज अवर मीन म्यू। तो अगर हमको ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू को हमको मिलती है ये जेड अल्फा बाई टू, जिसकी वैल्यू यूजुअली हम टेबल से निकाल लेते हैं 1.96, और सिग्मा बाई अंडर रूट 10। इसका मतलब ये हो कि जो स्टैंडर्ड एरर है वो कितना है? इस सिग्मा बाई अंडर रूट 10 में वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस, तब हमको ये वाली वैल्यू जो है मिल जाती है। और जब माइनस के साथ करते हैं देन वी गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। इसी से हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल सारे सॉफ्टवेयर इसी फॉर्मूले से निकाल करके देते हैं। एसपीएसएस कर लीजिए, चाहे सैस कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, वहीं से आपको ये मिलता है। उसको नाउ आई एम जस्ट राइटिंग इट एज म्यू प्लस माइनस डेल्टा। इसको हम क्या कह रहे हैं? म्यू प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो इन दिस अबव एग्जांपल डेल्टा इज 0.3। इस अबव एग्जांपल में जो डेल्टा है वो क्या है? इतना 0.3, यानी कि मीन कितना आ रहा है? 3.4। हमारे डेटा में जो मीन आया वो 3.4 आया, और डेल्टा 0.3। प्लस किया माइनस किया, हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गई। और इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ एरर। ओके, आगे बढ़िए। सो दिस मार्जिन ऑफ एरर डेल्टा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये जेड अल्फा बाई टू सिग्मा बाई अंडर रूट एन। एग्रीड? ओके, अब यहां से हम देखें अगर बहुत ध्यान से, जो हमारा मार्जिन ऑफ एरर है, या उसको अगर हिंदी में बोले, कितनी गलती आप बर्दाश्त कर सकते
ठीक है। आप बर्दाश्त करने मतलब आपका दोस्त आपके साथ कभी कभी बदतमीजी करता है, तो कितनी बदतमीजी आप उसकी टॉलरेट कर सकते हैं? अगर लिमिट में कर रहे हैं तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन अगर लिमिट से बाहर कर दिया तो भैया ये बर्दाश्त नहीं होगा, अपना दोस्ती यारी टूट जाएगी। इसी तरह से आप जब कोई चीज एस्टिमेट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, किसी ने आपको बताया कि आपको यहां से रेलवे स्टेशन जाने में 40 मिनट लगेगा, इसके साथ आप उसको अपना वो भी तो बताइए। ठीक है, कि इतना ऊपर नीचे ले लेना भैया। whenever you are going to, वैसे जैसे आपने वो बोला कि बच्चे का वजन कितना आएगा, तो 3.5 किलो के आसपास आएगा, लेकिन है ना, 200 ग्राम ऊपर नीचे ले लीजिएगा, दैट इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल। हाउ मच मार्जिन, कितना आप उसमें मार्जिन अपने एस्टिमेट में आप टॉलरेट कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट दिस मार्जिन ऑफ एरर यू शुड थिंक ऑफ इन दिस वे। तो ये देखिए, ये जो मार्जिन ऑफ एरर है, जैसे जैसे आपका अल्फा बढ़ेगा, ये मार्जिन ऑफ एरर आपका बढ़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जिस डेटा में ज्यादा फैलाव, जिस डेटा में ज्यादा फैलाव है उस डेटा में मार्जिन ऑफ एरर क्या आएगा, ज्यादा है। सिमिलरली सैंपल साइज ये एन है, ये जैसे जैसे ये, और इसके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये लॉजिकल भी लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा और इसको आगे बढ़े तो, अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, क्लास 10 तक अगर मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे सॉल्व ना, यही आएगा, यही आएगा, एन विच इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू सिग्मा बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। अब आप हमसे कहेंगे कि हमको सैंपल साइज एस्टिमेट करना है, ठीक है, फॉर्मूला ये दिया हुआ है। आप जैसे ही हमारे पास आएंगे कि सर हमको सैंपल साइज एस्टिमेट करना, मीन भी हमारी जानना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज का मीन बीएमआई एस्टिमेट करना, कितने एम्प्लॉय का डेटा हम कलेक्ट करें। तो हमने कहा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप क्या कर लो, एस्टिमेट कर लो कि कितना है ना आपको चाहिए। है कि इसमें ये अल्फा क्या है, तो अल्फा हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और यूजुअली उसको हम 5% रख लेते हैं। उसी के बेसिस पे ये जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या हुआ कि जो बीएमआई है लखनऊ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय का, उसमें कितना फैलाव है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीएमआई। हमको पता ही नहीं, वही चीज एस्टिमेट करना है, तो हम सिग्मा कहां से आपको पता है, यही तो जवाब आप देंगे। बोलिए भाई, यू वांट, हमको आपको एन बताना है, हम आपसे पूछ रहे सिग्मा बताइए, अब आपके सिग्मा तो हमें पता नहीं, सिग्मा कैसे जानेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द सिग्मा। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका, आप लिटरेचर रिव्यू करिए, यानी कि आप जिस फील्ड को, जिस चीज को आप एस्टिमेट करने जा रहे हैं, जस्ट ट्राई टू डू द लिटरेचर रिव्यू, और देखिए किसी ने पहले किया तो उसमें सिग्मा कितना था, उस पर्टिकुलर डेटा में अगर किसी ने पहले भी डेटा कलेक्ट किया है तो उसमें सिग्मा कितना था या नहीं, किसी ने नहीं किया। तब आप क्या करिए, पायलट स्टडी करिए, डू अ पायलट स्टडी, 25-50, कम से कम 25-30-40 एम्प्लॉय का बीएमआई का डेटा क्या करिए, इकट्ठा करिए, और उसमें देखिए कितना वेरिएशन आ, और लिखिए अपने प्रोटोकॉल में कि हमने सिग्मा यहां से एस्टिमेट किया, हमने सिग्मा इस रिसर्च आर्टिकल से कोट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिग्मा कुछ भी डाल दें, जैसा होता है। सिग्मा की वैल्यू आप कितनी लोगे, आपके पास उसका साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। एक क्लियर हुआ सब लोगों को ये चीज की नहीं। तीसरा, मार्जिन ऑफ एरर, डेल्टा, ये कितना मार्जिन ऑफ एरर। अब यहाँ पे जो कहानी आती है वो ये आती है कि आप बीएमआई के एस्टिमेट में कितनी गलती बर्दाश्त कर सकते। बात समझ में आ रही है? ये स्टैटिस्टिक्स का आदमी नहीं बताएगा, ये बताओगे आप, क्योंकि आप इस पे रिसर्च कर रहे हो।
आपने इसका लिटरेचर रिव्यू किया है, आपको इसका ज्यादा आइडिया। हम तो बात उनकी कर रहे हैं जो लैब में रिसर्च करते हैं, तो उनको पता है ना कि इस पर्टिकुलर चीज में हम कितना एरर टॉलरेट कर सकते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? तो जो मार्जिन ऑफ एरर है डेल्टा, ये आपको बताना पड़ेगा कि हम कम से कम तीन, अगर ऊपर नीचे जैसे मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ। आप गए आलू लेने, आलू समझते हो ना, खरीदे हो आलू, क्या रेट चल रहा है? नहीं पता, नहीं खरीदते हो, तो बताए उसको। चलो, आलू खरीदने जाते हो, तो आलू खरीदने जाते हो तो क्या होता है, इतना मार्जिन जो है ऊपर नीचे हो रहा है, 100 ग्राम ऊपर नीचे भी हुआ, तो आलू वाले को भी दिक्कत नहीं और आपको भी दिक्कत नहीं, फिर भी आप कोशिश करते हो कि ज्यादा ही मिल जाए। सोना खरीदने गए हो, जाना कभी, वो तराजू जो होता है ना वो भी एकदम बंद होता है, हवा भी ना लगे, ठीक है, और तौलने वाला भी और तौलाने वाला भी, दोनों की नजर एकदम ऐसे रहती खुली, क्योंकि उसमें आप मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट टॉलरेट इवन 1 ग्राम ऑफ, 1 ग्राम क्या, इतना ग्राम ग्राम से बहुत छोटा, उतना भी आप एरर नहीं टॉलरेट कर सकते। वट एवर यू आर मेजरिंग, उसमें कितना गलती आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर मेजरिंग, नाप क्या रहे हैं। आप कोई बायोलॉजिकल पैरामीटर नाप रहे हैं जिसके एक वैल्यू भी 0.5 मीटर नीचे होने से भी आपका दिक्कत हो जाएगा, तो उसका मार्जिन ऑफ एरर आपको क्या रखना पड़ेगा, बहुत कम रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज की ठीक है, आप थोड़ा ज्यादा एरर ले सकते हैं, तो यू हैव टू डिसाइड डेल्टा अकॉर्डिंग टू दैट। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एग्जांपल, determine the sample size required to estimate the mean weight of the college student, mean weight of the college student when sigma is 30 and margin of error is 10 kg। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें बड़ी आसानी से आपको दे दी गई, लेकिन अगर हम ये दोनों चीजें छुपा दें, ये दोनों चीजें छुपा दें, 95% कॉन्फिडेंस तो पता ही है, हम आपको इनका मीन वेट, कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का मीन वेट निकालना है, कितने बच्चों को ले, तो वही क्वेश्चन होगा, सिग्मा बताइए। सिग्मा आपको सबमिट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से खोजना पड़ेगा, तो फिर मार्जिन ऑफ एरर, तो उन्होंने 10 kg का मार्जिन ऑफ एरर रखा है, आप उसको 7 kg, 12 kg कितना भी रख सकते हैं। सिंपली उस फॉर्मूले में डाला जेड अल्फा बाई टू, जिसकी वैल्यू 1.96 होती है, फेमस है, इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई डेल्टा एंड देन इट्स होल स्क्वायर। तो आपको केवल 35 स्टूडेंट की आवश्यकता है, एटलीस्ट यू रिक्वायर 35 स्टूडेंट फॉर एस्टिमेटिंग द मीन वेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। जैसे ही आप इसको, जो आपका ये 10 kg, जैसे आपने इसको 5 kg करेंगे, ठीक है, आपका सैंपल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज यू नीड मोर प्रिसाइज रिजल्ट, यू नीड मोर प्रिसाइज रिजल्ट। इसी वजह से इसका कहीं ना कहीं जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रिसीजन एनालिसिस। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रिसीजन एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, तो सिमिलरली sometimes instead of mean, so another thing which you want to estimate if you are working on a categorical data, अगर आपका मेन आउटकम वेरिएबल कैटेगरिकल है, ठीक है, व्हाट डज इट मीन कैटेगरिकल डेटा, आप लोगों को पता भी है कैटेगरिकल डेटा और नॉन कैटेगरिकल डेटा क्या होता है, है? गलत, सोच गलत है, गलत नहीं, बस सोच गलत है। देखिए जब भी सब लोग इस चीज को ध्यान से सुन लो, बता दे रहे, कहीं नहीं, नहीं ना कहीं लिखा है ना कहीं लिखा जाएगा, बस हम ही बोल सकते हैं। जब भी आपके सामने कैसे सोचना है वो बता रहे, लिखा तो है लेकिन सोचना कैसे वो बता, जब भी आपके सामने कोई वेरिएबल है जिसको कि आप नाप रहे हैं, उसके साथ यूनिट एसोसिएट है कि नहीं, उससे पहले ये सोच लो। अगर उसके साथ यूनिट एसोसिएट है तो हम उसको क्या कहते हैं,
मैट्रिक वेरिएबल, उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक वेरिएबल। अगर उसके साथ यूनिट एसोसिएट नहीं है तब उसको हम क्या कहते हैं? कैटेगरिकल वेरिएबल। आप देखिएगा सारे कैटेगरिकल वेरिएबल के साथ कोई यूनिट एसोसिएटेड नहीं होती है। फिर फर्दर कैटेगरिकल वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसके ऑर्डरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल। जब ऑर्डरिंग का कोई फर्क पड़ रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, कितना बड़ा कितना छोटा ये नहीं पता चलेगा भैया, तब उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनल वेरिएबल। फर्स्ट डिवीजन पास है, सेकंड डिवीजन पास है, थर्ड डिवीजन पास है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? यूनिट है कि नहीं है। अगर यूनिट है तो उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक वेरिएबल या न्यूमेरिकल वेरिएबल भी कह सकते हैं। और अगर या क्या क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी कह सकते हैं, बट मैट्रिक वेरिएबल इज द प्रॉपर नेम। और यूनिट अगर एसोसिएटेड नहीं है तो कैटेगरिकल वेरिएबल। ठीक है। तो अभी जो पीछे वाला जो हम बात कर रहे थे वो कैसा वेरिएबल था हमारा? यूनिट था ना, बीएमआई के साथ, हाइट के साथ यूनिट था ना, तो वहां पे मीन वगैरह की बात करते हैं। तो वो सारे कैसे थे? मैट्रिक वेरिएबल। जब हमारा नॉन मैट्रिक, जब हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल, तब वहां पे हम प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ, टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो यही दो तरह का डेटा होता है, या तो मीन की बात करेंगे या फिर प्रोपोर्शन की बात करेंगे। सुबेरे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप देखे ही होंगे, टेस्ट फॉर मीन, टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन, ये सब तो था मेन इसी वजह से। तो जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं, हमने ये देख लिया ये ऑल दीज आर एम्प्लॉय ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, नाउ वी वांट टू एस्टिमेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देम आर स्मोकर। ठीक है। धुआं उड़ाते हुए देखिए होंगे तुम लोग कई लोगों को, उसको एस्टिमेट करना है। 20% है, 10% है, 50% है, कितने हैं बताओ? आंसर करो। यहाँ से तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जाने का तो एस्टिमेट दे दिए। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी आर स्मोकर? है रिसर्च क्वेश्चन, एस्टिमेट करना है। कैसे करोगे? कितने लोगों को लोगे कि एस्टिमेट प्रिसाइज है? 10 लोगों को लोगे, 50 लोगों को लोगे, हाउ हाउ मेनी पीपल यू आर गोइंग टू टेक? प्रॉब्लम फिर वही है, एज द सैंपल विल चेंज एस्टिमेट विल चेंज। तो इसमें भी हम, हमारा जो स्टैंडर्ड एरर आता है उसका फॉर्मूला ये है, पी इंटू वन माइनस पी डिवाइडेड बाई एन। आपने पी निकाला, कई सैंपल लिए आपने साइज 100 के, उससे आपने देखा पहले सैंपल में 20 लोग हमको मिले स्मोकर, दूसरे सैंपल में हमको 18 स्मोकर मिले, 0.20, 0.18, 0.17, 0.22, इस तरह से आपको पी की वैल्यूज मिलेंगी। व्हेन यू प्लॉट ऑल दिस पी यू विल गेट अ नॉर्मल कर्व। और उस नॉर्मल कर्व का जो स्टैंडर्ड एरर है दैट कम्स आउट टू बी, जैसे उसमें सिग्मा बाई अंडर रूट एन आ रहा था, वैसे इसमें आएगा पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एन। क्यू को मैंने वन माइनस पी लिख रखा है, बट कई जगह वो क्यू, पी इंटू वन माइनस पी डिवाइडेड बाई, ये सारा का सारा अंडर रूट के अंदर रहना है। ठीक है। अभी हम रुकेंगे तब पूछना, लिखती रहो, अभी फ्लो में है, रुको मत अभी, लिख लो। ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द सेम थिंग आई एम राइटिंग। कितने लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई, अगर ये है तो यूनिवर्सिटी में, तो प्रोवाइड ये 0.93 से 96 की प्रोबेबिलिटी 95 है ना? इन द सेम वे आई एम जस्ट राइटिंग इट, एंड देन पी प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू इंटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला हमने आपको दिखाया, पी इंटू वन माइनस पी डिवाइडेड बाई एन, पी प्लस माइनस डेल्टा। ये हो गया हमारा। फिर अगेन दैट मार्जिन ऑफ एरर, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? जेड अल्फा बाई टू पी इंटू वन माइनस पी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। ये तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही होगा इस वर्कशॉप का, जो भी बना है वहीं से स्लाइड मिल जाएगा फोटो पीछे, दोनों ध्यान से। ठीक है। जेड अल्फा बाई टू पी इंटू वन माइनस पी डिवाइडेड बाई एन। सॉल्व कर लिए इसको। ठीक है। कितने लोगों ने नाम सुना 4 pq बाई डी स्क्वायर? अच्छा, ये तुम लोगों में नहीं चलता, उधर उधर बहुत चलता है, वहां पे 4 pq बाई, ये देखिए। तो ये फॉर्मूला जो आया, ये फॉर्मूला आ गया सिंपल सा, एन जेड अल्फा, ये तो टेबल से वैल्यू मिल जाएगी। मार्जिन ऑफ एरर, आप अपने प्रोपोर्शन में कितना एरर टॉलरेट कर सकते हैं वो आपको बताना है, पी इंटू वन माइनस पी बताना है। एग्जाम्पल लेता और मजा आएगा। इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए इस एग्जाम्पल से आपको और मजा आएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ये कि एक मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल ऑफिसर है, उसको ये जानना है कि जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगती है, छोटे बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को क्या लगती है, वैक्सीन लगती है। कितने प्रपोर्शन बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो ठीक ठाक है, दैट इज कंप्लीट वैक्सीनेशन, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन आर गेटिंग द कंप्लीट वैक्सीनेशन। वी वांट टू एस्टिमेट दिस पी। उसको इस पी को क्या करना है, एस्टिमेट करना है, 70% है, 60% है, 40% है, 80% है, कितने परसेंट है, यू वांट टू एस्टिमेट दिस पी। क्वेश्चन इज कितने बच्चों को, भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को तो हो ही नहीं सकता, तो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही शुड सैंपल। और जाके उसमें पूछे उनके वैक्सीन कार्ड में, देखे कि भैया वैक्सीन कितनी तुमको लगी है, वहीं से वो निकाले कि कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। ठीक, प्रॉब्लम क्लियर? ठीक है, तो हमको एस्टिमेट करना है प्रपोर्शन। अभी जो हमारा फॉर्मूला था, अगर आप लोग देखें, फॉर्मूला जो है वो ये है, ये फॉर्मूला है। इसमें हमको क्या चाहिए, पी चाहिए, इसी को एस्टिमेट करना है, इसी को यूज करना है। ऐसे वहां पे सिग्मा था ना, तो सिग्मा के लिए मैंने क्या बताया आपको, लिटरेचर रिव्यू करिए। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा कि आप देखिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं ऐसा, तो वहां पे पी की वैल्यू कितनी है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक हमको और अच्छी चीज मिल जाती है, वो ये होती है कि व्हेन यू टेक द वैल्यू ऑफ पी एज 0.5, इन दैट केस योर सैंपल साइज इज मैक्सिमम। उस केस में आपका सैंपल साइज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, सो हियर वी विल चूज, ये दिस विल बी व्हेन वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट, हमको पी का कोई आइडिया नहीं होता, तो हम पी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0.5, क्योंकि इसके लिए वजह से जो सैंपल साइज मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, लॉजिक क्या है, statistically choosing p equal to 0.5 is going to provide a enough observation irrespective of the actual value of p। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डाला, 1.96 आ गया जेड अल्फा बाई 2। मार्जिन ऑफ एरर मतलब हम अपने एस्टिमेट में 10% का एरर टॉलरेट कर सकते हैं, जो प्रोपोर्शन का एस्टिमेट है उसमें 10% का एरर टॉलरेट कर सकते हैं। तो वो हो गया 0.10 डेल्टा, डेल्टा हो गया 0.10, पी की वैल्यू 0.50। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पी पता नहीं था, लेकिन ये पता है कि पी की वैल्यू 0.50 लेंगे तो सैंपल साइज हमको मैक्सिमम मिलेगा। उससे हमारा जो सैंपल साइज आया कितना आया, 97। एटलीस्ट वी शुड सैंपल 97 किड्स टू एस्टिमेट दिस। ठीक है, थोड़ा सा और एक एग्जांपल ले लें। अब क्या है यहाँ पे, उसको ये जानना है कि बच्चों को टीबी कितना है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और मार्जिन ऑफ एरर इन्होंने 5% लिया है, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 99% लिया है, यानी कि 0.001। तो ये आपका पी यहाँ पे अगर हम 0.5 लेते हैं तो हमारा जो सैंपल साइज आएगा 666 मिलेगा। अब इस केस में क्या हो जाता है कि अगर हमको ये चेक करना है कि बच्चे को टीबी है कि टीबी नहीं है ना, तो वो उतना आसान नहीं हो जाएगा कि वैक्सीन कार्ड देखिए और बता दिए, उसको मॉन्टू टेस्ट करना पड़ेगा। जाइए करिए मॉन्टू टेस्ट, पेरेंट्स डांटेंगे, वो करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, और कॉस्ट भी होता है उसके साथ। तो अब यहाँ पे वी हैव टू यूज this that some in some literature it is written that its value cannot exceed by 20%, 20% से ज्यादा ये एक्सीड नहीं कर सकता। उस केस में हमारा सैंपल साइज कितना हो जाएगा, 427। सेम फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो ये 427 आ जाएगा। even studying this many of children is unrealistic। okay, so the investigator lowered down this value 99 to 90%, and in that case it requires only 174 students only। सैंपल साइज को आप इस तरह से इनके साथ प्ले कर सकते हैं, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि आपने जो इनपुट पैरामीटर है, जो पी डेल्टा, इनकी जो वैल्यू आपने ली है, उसका आपके पास साइंटिफिक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल करके, हमको देखिए 200 सैंपल चाहिए, अब आप पी डेल्टा ऐसा डालिए कि 200 आ जाए, ये काम नहीं करना। ठीक है,
ये आप लोगों के लिए जो एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. समटाइम व्हाट हैपन इन सोशल साइंस, दिस पर्टिकुलर रिसर्चर इज स्टडिंग द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया. कई बार सोशल साइंटिस्ट को विलेज में या किसी छोटे से जगह पे सर्वे करना होता है, एंड ही नोज दैट इन दैट केस here 2000 people are living, approximately 2000 people are living. He or she is interested in estimating the P for several yes or no question in his survey. क्वेश्चन में होता है ना कि आपके पास कार है कि नहीं, आपके पास स्कूटर है कि नहीं, आपके पास घर दीवार है उसके है कि नहीं, पक्का मकान है कि नहीं, अपना खुद का पीने का पानी बोरिंग है. तो सर सर्वे में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. लॉट ऑफ यस और नो है. तो हाउ मेनी पीपल डज he have to randomly sample to ensure that her estimate P are within margin of error is 0.04 of the true proportion P. तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पहले था P इंटू वन माइनस पी डिवाइडेड बाई एन. लेकिन जब आपका फाइनाइट पॉपुलेशन है, अर्लियर में क्या था, ये जो एन था वो इनफाइनाइट था. देखिए जब एन माइनस एन बाई एन माइनस वन करेंगे, जब ये एन बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 1 लाख कर दीजिए और इसको 100 कर दीजिए, एन में से 100 घटाइए और फिर 1 लाख में से 100 को घटाइए, 1 लाख में से 1 को घटाइए, दोनों का रेशियो करिए तो 1 के आसपास ही तो आएगा. तो जब एन आपका बहुत लार्ज हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है. लेकिन जब एन आपका फाइनाइट होता है, थोड़ा स्मॉल होता है, देन ये मल्टीप्लायर एक यहाँ पे आ जाता है. तो ये जो फॉर्मूला है पूरा, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर में ये भी आ जाता है. अगेन पी प्लस माइनस डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ये हो जाती है, और इसको आप फिर एन के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा. ठीक है. तो जब यू नो योर एन इज फाइनाइट, तो सैंपल साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट लॉजिक इज सेम. लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज आपका प्रिसीजन का फॉर्मूला चेंज हो गया. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रिसीजन स्टैंडर्ड एरर, ये चेंज हो गया, इस वजह से आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया. इसको थोड़ा सा और मूव करेंगे तो ये जेड अल्फा बाई डेल्टा पी इंटू वन माइनस पी एन की ये वैल्यू आ जाएगी. एन की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तब आपको ये जो है एन मिल जाए. एन इक्वल टू एम अपॉन वन प्लस एम माइनस वन बाई एन. एम आपका अल्टीमेटली देखिए वही है, लेकिन अब आपको इस फॉर्मूले में डालना पड़ेगा. दिस बिकम्स योर फॉर्मूला इफ एन इज फाइनाइट. ठीक है. सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये डेल्टा 0.04 है. हमने पहले एम कैलकुलेट किया. ये एम कब होता जब आपका पॉपुलेशन फाइनाइट होता, उस केस में यूनिट 600 पीपल, बट सिंस इट इज 2000, तो अब वो आपका 6 से घट करके 462 हो जाएगा. अगर आपको पता है कि आपका टोटल पॉपुलेशन साइज 2000 है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग डेटा ऑन 600 पीपल, यू जस्ट the sample size comes down to 463 approximately. Okay. ये टेबल है. अब नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और पावर एनालिसिस. तो अब 2-2.5 घंटे का, लेकिन समय थोड़ा सा. तो रेशनल क्या है, जैसे ये एग्जांपल देखिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का. लेट अस टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एवरेज हाइट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट 140 सेंटीमीटर. अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 140 सेंटीमीटर. यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 30 है. ठीक है. तो दिस एक्चुअली बिकम्स दिस पर्टिकुलर चार्ट. यहाँ पे हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हम 100 लोगों का सैंपल लेते हैं, मीन हमारा 140 आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 30 है. दिस इज 140, स्टैंडर्ड डेविएशन 30. तो जेड अल्फा बाई टू इंटू द सिग्मा बाई अंडर रूट 10. 30 को यहाँ डाले और अंडर रूट 10 को यहाँ डाले, तो हमको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल मिलता है 134 से 145. अगर अल्फा 0.05 है, और सेम हमारा हो जाएगा 132 से 147 अगर अल्फा हमारा 0.01. सॉफ्टवेयर में डालिए, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल इसी हिसाब से मिलता चला जाएगा. फॉर्मूला यही है, जेड अल्फा बाई टू सिग्मा बाई अंडर रूट एन. सिग्मा की वैल्यू 30 डाल दीजिए, एन की वैल्यू 100 डाल दीजिए, और एक्स बार आपका 140 है ही है. उसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल जाएगी अलग अलग अल्फा के लिए.
उसी चीज का देखिए यहाँ फोटो बना हुआ है, उसी चीज का यहाँ पे फोटो बना हुआ है। फोटो बनने का मतलब क्या, हमने लिखा एक्सेप्ट एच नॉट, आई हैव रिटन एक्सेप्ट एच नॉट। अगर एच नॉट की वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है, आपका सैंपल चेंज हुआ, आपका सैंपल चेंज हुआ। मीन की वैल्यू अगर इसके बीच में आएगी, तो आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर मीन की वैल्यू इस रेंज से बाहर जाएगी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नल हाइपोथेसिस क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्चुअली, इसी चीज को जब हम थोड़ा सा जब हम यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, एक्स बार माइनस में सिग्मा बाई अंडर रूट है, ऊपर वाला जो ये एक्स एक्सिस है ना, इसको हमने चेंज कर दिया माइनस जेड अल्फा बाई टू से प्लस जेड अल्फा बाई टू। देखिए ये जो रेंज है, जिसके बाहर गया तो रिजेक्ट कर देंगे। उसी चीज को ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, वो आपका इस स्केल पे ले आए, मीन जीरो हो गया और अपर और लोअर लिमिट माइनस जेड अल्फा बाई टू। वही हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, इसके बाहर अगर चला जाएगा, रेंज के बाहर चला जाएगा, यानी कि अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू 1.96 से बड़ी है या माइनस 1.96 से छोटी है, देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वो रिजेक्शन रीजन में चला है। उसी कहानी को टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है, दूसरी तरफ से कान पकड़ के बता रही, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोग को बताया, उसी चीज को टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दूसरे तरीके से बताती है, कुछ नहीं करती, उसका एक्सेस ये कर दिया। और वही फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या है, मतलब 1.9 क्या है, पी वैल्यू क्या होती है। पी वैल्यू वो एरिया होती है, आपका जो ऑब्जर्व आया है, उसके बाद का एरिया कितना है। अगर वो एरिया 0.05 से छोटा है, तो आप कहते हैं पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। बट आइडिया वहीं से आता है। तो ये तो नल हाइपोथेसिस में और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ जाता है, और ये आपका जो है डेल्टा जो है, इन दोनों के बीच का दूरी है। ठीक है, तो व्हाट वी आर सेइंग दैट म्यू नॉट प्लस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा बाई अंडर रूट एन, जो कि ये वाली वैल्यू है। और इसी को जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे ले आते हैं, ये वाली वैल्यू, तो म्यू वन माइनस जेड बीटा सिग्मा बाई अंडर रूट एन, ये आ जाता है। और व्हेन यू सॉल्व दिस, तब आपका म्यू वन माइनस म्यू नॉट जेड अल्फा बाई टू प्लस जेड बीटा सिग्मा बाई अंडर रूट एन, जिसको कि हम म्यू वन माइनस म्यू नॉट को यहाँ पे हम डेल्टा कह रहे हैं। और आप देखिए सैंपल साइज का फॉर्मूला क्या हो गया, एन जेड अल्फा बाई टू। वहां पे देखिए जेड बीटा नहीं था। when you are in the process of estimation, there is no, we are not speaking in terms of power, तो यहाँ पे जेड बीटा भी आके बैठ गया। तो अगर आपका प्रॉब्लम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का है, तो सैंपल साइज कैलकुलेशन के फॉर्मूले में जेड बीटा आना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज कि व्हेन वी हैव टू यूज विच फॉर्मूला। सिंपल सा आंसर है, आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा, वेदर माय रिसर्च क्वेश्चन इज अबाउट अ एस्टिमेशन और इट इज अबाउट अ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहला स्टेप ही यही, तभी आप डिसाइड कर पाओगे। सॉफ्टवेयर में तो दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर में लास्ट की बीटा की वैल्यू आप डाल ही दोगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। और कह दो कि वहां गए थे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वहां पर सैंपल साइज कैलकुलेट करके आए हैं, ये 222 आया है। तो जो आपके डिपार्टमेंट के जियोलॉजी बॉटनी या इकोनॉमिक्स, ठीक है, अच्छा वहां से करा के आए तो कुछ ठीक ही करा के आए होगे, चलो आगे बढ़ो। गलती हो जाती है, हम ही लोगों को अभी नहीं पता है, पता चल रहा है लेकिन नहीं पता है। ठीक है, आप लोगों को ही नहीं पता। इट इज योर बेबी, सो यू हैव टू टेक केयर। आपका थीसिस, आपका बच्चा है, आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, किसी दूसरे के सहारे छोड़ करके मत चले जाइए। क्या खिला रहा है, फिर आप उसी को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्यों रखा, जेड बीटा क्यों रखा, यही आपका ट्रेनिंग है, यही आपको समझना है। whatever thing he is doing, try to read, क्योंकि आज का जमाना वाला जमाना नहीं रह गया। ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, सारी चीजें यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप सर्च करिए, पढ़िए, लोगों से मिलिए, बात करिए। मैथमेटिक्स को भूल जाइए, मैथमेटिक्स समझने के लिए नहीं कह रहे, बट लॉजिक तो समझ सकते हैं। हमने क्या मैथमेटिक्स बताया आपको, कुछ बताया, लॉजिक तो बताया रहे, तो वो वही लॉजिक आप लोगों को समझना है एज अ रिसर्चर। तो टेक दिस फॉर्मूला, एन एक्सपेरिमेंट इज प्लान टू टेस्ट द हाइपोथेसिस कि बच्चे जो है 30 to 100 कैलोरी लेते हैं या उससे ज्यादा लेते हैं, है ना।
यहाँ पे 400 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो फॉर्मूले में डालिए और आपको आपका एन मिल जाए. So this is what the table which is being there. So you have to understand if the your main variable is a metric variable, जिसको हमने continuous लिखा है और one sample है, you have to estimate. When you are in the process of estimation, then the formula of sample size is this. When you are process of testing of hypothesis, the formula of sample size will become this. ये देखिए z alpha by 2 plus z beta divided by effect size. Effect size मतलब mu1 minus mu0 divided by sigma. अगर आपका डाइकोटोमस, अगर आपका प्रोपोर्शन है, तब ये हो जाएगा. ठीक है. दो ग्रुप है म्यू वन माइनस म्यू टू में, तब आपका टू यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे टू आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. एज द स्टडी डिजाइन चेंजेस, अब यहाँ पे आप सिंगल चीज एस्टिमेट करने के वजह आप क्या कर रहे हैं, आपके पास दो कंटिन्यूअस वेरिएबल और उन दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल को आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ज्यादा है किसमें ज्यादा है. सिमिलरली फॉर द टू प्रपोर्शन, ये मैच, अगर आपका डेटा मैच पेयर है कि भाई आपने 50 बच्चों को लिया, उनका आपने बॉडी मास इंडेक्स, मीन, वेट, हाइट, और फिर आपने क्या किया कि अब इनको 3 महीने आप आयरन की गोली खिलाई, आप हॉर्लिक्स पिलाइए 3 महीने, या बॉर्नविटा पिलाइए 3 महीने के बाद आके फिर विल चेक. तो ये आपका डेटा कैसा हो गया, पेयर डेटा होगा, बिकॉज सेम चिल्ड्रन इज देयर. आपने उनका डेटा पहले लिया था और फिर आपने बाद में लिया, तो दे आर रिलेटेड. इस तरह की अगर आपकी स्टडी डिजाइन है, फॉर दैट द फॉर्मूला ऑफ सैंपल साइज इज डिफरेंट. तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सैंपल साइज फॉर्मूला, ऐसा नहीं है, ये तो हमने बहुत बेसिक चीजें आपसे बताई. तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को बहुत ध्यान से एस्टिमेट करना है, सैंपल साइज को कैलकुलेट करना चाहिए. मतलब मोस्ट ऑफ द 60-70% ऑफ सैंपल साइज कैलकुलेशन विल बी डन व्हाट आई हैव टॉट हियर. ठीक है. लेकिन फिर भी कई जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, या और भी कई टेक्निक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसका सैंपल साइज कैलकुलेट कर, रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, तो उसका सैंपल साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है. लॉजिक लेकिन यही चलता है. तो ये सारी चीजें हम अ, नहीं बताते हैं. थोड़ा सा आप लोगों को लैपटॉप दोगे इधर बेटा, और रहने देते हैं. आप लोगों को हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता दें कि हाउ, क्योंकि कैसे इसको करना है वो आप लोगों को बता देते हैं. तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक्सेल में सारे फॉर्मूला बैकएंड पे लिख दिया है. फ्रंट एंड पे आपको केवल क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेगी, और आपको अपना सैंपल साइज का वैल्यू मिल जाएगा. एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ये एक्सेल शीट जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. 10 मिनट और. कितने बजे तक मेरा क्लास है? ठीक है. बस तो सब इलस्ट्रेट कर दें. बस इसको बंद करना है, इसके कैसे करें. हमारी पेन ड्राइव हम कर रहे. I think this slide which is here and this Excel sheet, okay, I will share with the organizer and they will share this with you on the Telegram group, whatever they have prepared.
Okay, so you can see that this Excel sheet, which is here, it has got 10 tabs. It has got 10 tabs. If we see here in the bottom left side, here I have tried to one n for confidence interval for mean. ठीक है, this is n for confidence interval for proportion. Tab number 2, n for confidence interval for proportion. Then confidence interval for mean reference. Confidence interval for these five tabs are for confidence interval, यानी कि precision analysis. And next five tabs are for test. Okay, this is for the test. So as soon as test will come, you will also see a tab for the power. You have to also mention what is the power of your study. So if you can see this first tab, okay. So what is being done over here? I just written the instruction. So instruction means all these yellow here you have to fill. जो इनपुट पैरामीटर है वो आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस लेवल, आपको क्या करना था, यू हैव टू एस्टिमेट द मीन बीएमआई ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय. तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, हियर 95% और 99% 90%. हियर यू हैव टू एंटर दैट पर्टिकुलर थिंग. सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन भरना था ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, सिग्मा. दैट यू हैव टू फिल ओवर हियर. एंड देन मार्जिन ऑफ एरर, हाउ मच, व्हाट इज द डेल्टा. If you remember the formula, which we have derived, it was something like this: n, which is equal to z alpha by 2 sigma by delta. एक फॉर्मूला था, कुछ किया नहीं है. उसी फॉर्मूले को यहाँ पे 62 जो कैलकुलेट होके आ रहा है, अगर आप इस 62 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए वही वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया. कुछ बड़ा काम नहीं किया, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, उन दोनों सेल से वैल्यूज उठा ली है, सिग्मा की, जेड अल्फा की और डेल्टा की. वो तीनों वैल्यू वहां से उठा ली है और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देखिए, D3 है ना, 1 माइनस D3. D3 वही तो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल. फिर आपको D6 दिख रहा होगा. D6 आप देख लीजिए 20 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई, तो D7 दिख रहा होगा मार्जिन ऑफ एरर, उसका स्क्वायर है. तो वही चीज वहां पे लिख दी नीचे. इस वजह से आपका जो है, आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों चीजों की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी. दैट्स इट, जो अभी डिस्कस किया. सिमिलरली आप देखिए, as soon as we discussed about the mean for the, if you are in the process of testing of hypothesis, in that case they will also ask that what is the power. यहाँ पे आपका z बीटा भी आ जाएगा. What is the level of significance, what is the power, what is the mean under H0, what is the mean under H1, and then what is the standard deviation, and then effect size वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा. सोशल साइंस में इफेक्ट साइज का भी अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसको समझने के लिए एक अगला 1 घंटा और चाहिए, तो किसी और दिन उस पर बात करेंगे. यहाँ पे देखिए एक और चीज दोनों टैब में हमने यहाँ डाला हुआ है. समटाइम व्हाट हैपेंड कि एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी हमारा सैंपल साइज आ गया 100. ठीक है, हमें 100 लोगों की जरूरत है और 100 लोगों पर हम सैंपल डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं. हमने 100 लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया कि इन 100 लोगों पर हमें डेटा कलेक्ट करना है. बट ओवर द रूटीन प्रोसेस ऑफ टाइम क्या होता है कि कुछ लोग हमारे स्टडी में अगर ऐसे हो, छूट जाए, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर स्टडी. तो इन दैट केस वी हैव टू एडजस्ट दैट सैंपल साइज. हमको क्या करना पड़ेगा, अपने सैंपल साइज को
पहले से एडजस्ट करना है कि अगर 10% है, ठीक है, 100 में अगर 10% है तो एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद 112, 112 लोगों से शुरू करें, ताकि अगर 10% लोग छूट भी जाए तो कम से कम 100 तो हमको मिल जाए। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए, वो ये कि देखिए, रैंडम सैम्पलिंग इज अ मिथ। इन प्रैक्टिकल सिनेरियो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले निकले हैं, या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप लोग पढ़ रहे हैं, या एस्टिमेशन का जो ये फॉर्मूला है, इसके पीछे एक बड़ा बेसिक एजम्पशन है। दैट एजम्पशन इज दैट इट इज अ रैंडम सैंपल। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 50 लोग बैठे हैं, 10 लोगों का रैंडम सैंपल लेना है, कैसे लोग? 50 लोगों की, खड़े हो, खड़े हो जाओ, हमें सबको बताओ कैसे लोग, बताओ। लिस्ट दे दिया, मुकेश ने तुम्हें लिस्ट दे दिया, ये लीजिए। बहुत अच्छा, शाबाश, यही सुनना चाहते थे। रैंडम रैंडम सैंपल में इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। रैंडम सैंपल की जो सबसे खास बात होती है कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग होते हैं, सबकी सैंपल में आने की जो संभावना वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम है तो आपका डेटा क्या है, इट इज अ रैंडम सैंपल। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो आपका डेटा रैंडम सैंपल नहीं है। तो आप बताइए, आप रैंडम सैंपल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी हैं, उन्हीं में से रैंडमली 50 लोगों का डेटा लेना है, नहीं ले पाएंगे। बड़ा मुश्किल है, टाइम ही नहीं देंगे आप, जाएंगे मिलने, मिल ही नहीं पाएंगे आप। तो रैंडम सैम्पलिंग इज द मिथ इन प्रैक्टिकल सिनेरियो। सारा का सारा फॉर्मूला जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर में लगाएंगे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, और आगे नॉन पैरा, सारा का जो एजम्पशन है कि इट इज अ रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल तो होता नहीं। अब क्या करें? ठीक है, तो वहां पे करते क्या है प्रैक्टिकली, वी वी डिफाइन अ टर्म विच इज टर्म्ड एज डिजाइन इफेक्ट। आपका डिजाइन था दैट यू आर गोइंग टू टेक अ रैंडम सैंपल, लेकिन आप रैंडम सैंपल ले नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सैंपल साइज को डिजाइन इफेक्ट की मदद से यू हैव टू इंक्रीज योर सैंपल साइज। आपको अपना सैंपल साइज क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। डिजाइन इफेक्ट क्या होता है? डिजाइन इफेक्ट इज अगेन, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रिसीजन। जो जो आपके स्टैंडर्ड एरर आ रहे थे ना, उन्हीं का रेशियो होता है कि अगर आपने रैंडम सैम्पलिंग किया तब मेरा वेरिएशन 10 आ रहा है, लेकिन अगर मैं रैंडम सैम्पलिंग नहीं करूंगा, किसी और टेक्निक से जाऊंगा, तो मेरा वेरिएशन, मेरे डेटा में जो एस्टिमेट में वेरिएबिलिटी क्या होगी, वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी। अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो मेरे एस्टिमेट में वेरिएबिलिटी से 10 आ रहा है। अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं करेंगे, हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग करेंगे, तो हो सकता है कि मेरे एस्टिमेट में जो वेरिएबिलिटी है वो 10 की बजाय क्या है, 20 है। क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग से क्या होता है कि डेटा आपका इन एंड लार्ज, इन जनरली दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है उसमें सिलेक्शन हो जाने की वजह से आपका जो एस्टिमेट होता है, उस एस्टिमेट में वेरिएबिलिटी जो होती है, जो स्टैंडर्ड एरर जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो आपका एरर आ रहा है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो एरर आ रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन इफेक्ट। तो प्रैक्टिकली इस डिजाइन इफेक्ट की वैल्यू 1.5 से 3 के बीच में वेरी करती है। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको अपना सैंपल साइज जो भी कैलकुलेट होके आया उसको 1.5 से 3 के बीच में किसी एक नंबर से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज फिजिबल टू यू, जो आपको क्या हो, फिजिबल। कुछ जो आपका जो एस्टिमेट है वो थोड़ा सा आप और रियलिटी और उसके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। बाकी ये एक्सेल शीट है, स्लाइड में मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है। आप लोगों को कभी भी सैंपल साइज से रिलेटेड कभी भी कोई भी चीज डिस्कस करना हो, आप लोग ईमेल लिखिए, तो रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू।